ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਓਲੰਪਿਡ ਕਲਾਸ 10th ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। 3 to 50 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਡਸ। 3 to 50 ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 48 ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਊਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8, 1 to 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 27, 2 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਮੀਨਸ 2/48। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/24। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ x = 0 y = 0 ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। x = 0 ਮੀਨਸ y ਐਕਸਿਸ, y = 0 ਮੀਨਸ x ਐਕਸਿਸ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਓਰੀਜਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਈ, 1.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ। ਇਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ 1200 ਮੀਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ 1200 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਓ ਏ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ 500 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 169,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ 1300 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1300 ਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1000 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ tan ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੀ 3/4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ tan 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। 4 ਜਿਵੇਂ sin/cos, ਇਹਨੂੰ cos 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ tan ਬੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, cos ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ cos 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ cos ਬੀਟਾ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4 tan ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ 3। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 4 × 3/4 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3/4, 3/4 ਪਲੱਸ 3। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 3 - 3 3 + 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 'ਚ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਚੱਕ ਲਓ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਐਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਏ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਏ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2, ਏ ਕਿਊਬ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰਸ ਨੇ 2 ਤੇ -3। ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਮੀਨਸ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। 2 ਤੇ 3 ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2a + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -6। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ -3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a + 1 -3 + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ -3a + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ b ਨਾਲ b ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 3 + 2 5a ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, b ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -6। ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਦੱਸਣੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਐਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ 99 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ 99 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 127 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ मीन्स बी ऑप्शन ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल अरना कोल 1 रुपये वाले तो 2 रुपये वाले सिक्के ने ठीक है ये बेटा आप 1 रुपये वाले सिक्कों की गिनती एक्स मान लाँगे 2 रुपये वाले सिक्कों की गिनती वाई मान लाँगे कुल सिक्के किन्ने ने अपने कोल 50 मीनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 तो कुल रुपये किन्ने ने बेटा अपने कोल 75 मीनस 1 रुपीज़ वाले 1x 2 रुपीज़ वाले 2y टोटल प्राइस किन्नी आ 75 इनू सबट्रैक्ट कर लाँगे आप तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस दे 25 ठीक है ये पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू भी थोड़े कोल किन्नी आ जाएगी 25 ठीक है इट्स ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन देखो बेटा 9 सीगा अपने कोल देर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हाल्स ए एंड बी ए तो बी हाल दे विच 2 विद्यार्थी ने बेटा टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी ए तो बी तक 10 बच्चे भेजे गए ने मान लो ए स्टूडेंट्स सीगे बेटा जी एक्स इधर किन्ने ने अपने कोल वाई ठीक है तो बेटा इधरों 10 माइनस हो जाएंगे इधर 10 थोड़े ऐड हो जाएंगे ठीक है इन्हू सॉल्व कर लो एक इक्वेशन थोड़ी बन जाएगी एक्स वाई इधर आके माइनस का 10 परले पास जाके राइट साइड ते पॉजिटिव मीनस 20 थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये बन जाएगी। नैक्सट है अपने कोल इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए ठीक है हम जो बी टू ए वाल 20 स्टूडेंट बेटा भेजते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी ठीक है हम देखो बेटा इधर 20 माइनस हो जाएंगे इधर 20 ऐड हो जाएंगे तो बेटा अपने को लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस दे 60 इन्हों तुसी सैकंड इक्वेशन मान लेना इन्होंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा तो एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी 100 वाई तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी 80 ठीक है इट्स आंसर ऑप्शन किहड़ी होगी बेटा जी बी। नैक्सट सीगा के दे मूल दसना बेटा भी दोनों इक्वेशनस ने कदों कॉन्सटेंट लाइनस होणगी इन्हां दियां ठीक है कॉन्सटेंट लाइन का फार्मूला की हुंदा जी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 मीनस 3 बाय 6 कोफिशिएंट्स ऑफ y चक्को माइनस 1 बाय माइनस 6 कॉन्सटेंट टर्म बेटा 8 इधर आके माइनस दे हो जाएंगे बाय 16 फर्स्ट 2 इक्वेशनस ले लो इनू क्रॉस आउट करो ये कैंसल आउट हो गया तो के दी वैल्यू कितनी आज क्रॉस करके बेटा जी 2 इट्स ऑप्शन सी। नैक्सट बेटा इनू सॉल्व करो पहले इक्वेशनस नू दसना रूट्स किहो जे होणगे ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ की बन गया एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्स की 4 ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये बेटा कोई रियल फैक्टर नहीं बनते इसका मतलब आंसर की आऊगा नो रियल रूट्स इट्स ऑप्शन सी। 12 सी बेटा अपने को देखना की स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट ट्रू है ये एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट स्टेटमेंट 2 एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विच बेटा एक्स की पावर कितनी होंगी अपने को 2 डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होंगी 2 इट मीनस बेटा वो 2 जीरोस हो सकदियां ने वध तो वध इट्स मीन यदा आंसर बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत सैकेंड आऊगा ओनली सैकेंड इज ट्रू ठीक है। ये देखो बेटा ये AP वाला सवाल आ 11th टर्म आप फाइंड आउट करनी है ये ए कितनी अपने को -5 डी साझा अंतर A2 माइनस A1 ये माइनस करो -5/2 माइनस माइनस दे 5 ठीक है बेटा जी इनू सॉल्व करके देखो कितना जी तुहाडे कोल 5/2
तो तुसी बेटा फार्मूला लगा लेना AP वाला की हुंदा अपने कोल AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। A -5 पुट कर लो, D 5/2 पुट कर लो, N किन्नी पुट करोगे 11। ठीक है, तो इन्हू सॉल्व करके कितना आ जाऊगा 20। इट्स ऑप्शन B। नैक्सट है बेटा ये अपने सम फाइंड आउट करना, ये भी AP अपने कोल। सम का फार्मूला बेटा की हुंदा अपने कोल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है जी, ये देखो A की वैल्यू कितनी है अपने कोल 4 - 1/n, साझा अंतर इन्हें सबट्रैक्ट कर दो 4 - 2/n -4 तो साइन चेंज हो जाए प्लस 1/n कितना आ गया -1/n। A की वैल्यू बेटा इत्थे पुट कर दो, D की वैल्यू -1/n पुट कर दो, N ही रहू तुहाडा। ठीक है, तो इन्हू सॉल्व करके तुहाडा आंसर आ जाऊगा 7n-1/2। इट्स ऑप्शन 2। नैक्सट देखो 100 ते 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बेटा ਜਿਹੜੇ 9th डिविजिबल नंबर ने ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ फाइंड आउट करना। AP ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ बेटा। 100 ਤੇ 9th डिविजिबल ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 108 117 198। देखो A ਤੁਹਾਡੀ 108 होगी, D ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ माइनस करके कितना आ जाऊगा 9। आ के लास्ट टर्म L। पहला तुसी बेटा L का फार्मूला लगाओगे A प्लस N-1 इंटू D। ये सारे वैल्यूज पुट करके N तुसी फाइंड आउट कर लेना। तो N की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल बेटा जी 11। ठीक है, फिर तुसी SN का फार्मूला लगाना। की फार्मूला हुंदा N/2 A प्लस L। N तुहाडे कोल 11 है बेटा, L तुहाडे कोल 198 आ, A तुहाडे कोल 108 आ। इनू सॉल्व करके बेटा तुहाडा आंसर आ जाऊगा 1683। ठीक है जी, इट्स ऑप्शन A। नैक्सट देखो बेटा ये है अपने कोल कोई ट्रायंगल PQR ऐसा PQR आ। देखो नाल दी नाल ड्रा करते हैं PQR। ये भुजा बेटा PS के उपर कोई बिंदु S आ, PS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू RS। ये तीनों साइड्स इक्वल ने। ठीक है, आपने देखना किहड़ी कंडीशन ये सही होएगी। देखो बेटा इनू 1 मान लेना, इनू 2, इनू 3, इनू 4। ठीक है, देखो बेटा ये आ दोनों साइड्स इक्वल ने इन ट्रायंगल PRS दे विच। ठीक है, PRS दे विच ਇਹਦਾ मतलब बेटा एंगल 1 किहदे बराबर होगा एंगल 3 दे। सिमिलरली RQS दे विच एंगल 2 किहदे बराबर होगा एंगल 4 दे। तो बाय बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिखांगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, उस तो बाद देखो एंगल 3 किहदे बराबर है एंगल 1 दे, एंगल 4 किहदे बराबर है एंगल 2 दे। आप लिखांगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, इत्थे बेटा एंगल 1 आ गया प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 टाइम्स देखो एंगल 1 आ गया, 2 टाइम्स एंगल 2 आ गया। अपने को आ गया बेटा 2 कॉमन कढ़ लाँगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। मीनस बेटा एंगल 1 तो एंगल 2 किहड़ा सीगा एंगल R। एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 290। इट मीनस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो एंगल R की सी बेटा ये 90 का कोण। 90 के सामने की होंदा अपने कोल हाइपोटन्यूज। मीनस पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। ठीक है जी, इट्स ऑप्शन C। नैक्सट है बेटा एक अपने को राइट एंगल ट्रायंगल आ, उस अपन हाइपोटन्यूज की वैल्यू गिवन आ कितनी आ जी 25। बाकी दो भुजावां विचों एक भुजा दूजे नालों 5 वध आ, इनू X मान लाँगे, इनू X प्लस 5 मान लाँगे। तो बेटा अपने दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ। राइट एंगल ट्रायंगल आ तो की लगावांगे आपां पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा
अपने को आ जाऊगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर मीनस 25 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5 का स्केयर। ये इक्वेशन बेटा तुसीं सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके थोड़ी इक्वेशन बन जाएगी ये एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस दे 300 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्केयर माइनस 15x प्लस 20x इज इक्वल माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा तो एक्स की वैल्यूज थोड़ी आ जाएगियाँ 15 तो माइनस दे 20, नैगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर लाँगे मीनस एक्स थोड़े को 15 आ जाएगा, एक्स प्लस 5 इच 5 ऐड कर दो किन्ने बन गया अपने को 20। ठीक है जी, अपना आंसर आ गया 15 ते 20, इट्स ऑप्शन फर्स्ट। नैक्सट सी बेटा अपने को कह रहे हैं क्यू अते आर, पी बेटा मिड पॉइंट आ क्यू आर का अपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो बेटा, क्यू आर का मिड पॉइंट की बनूगा, फार्मूला किंदा सी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मीनस -6 - 2/2 5/5 प्लस 3/2। मिड पॉइंट केड़ा अपने को बेटा जी a/3, 4 फस्ट नू फस्ट नाल इक्वेट कर लो बेटा। ठीक है, इनू बराबर रख के अपने को ए की वैल्यू कितनी आ जाऊगी -12, इट्स ऑप्शन बी। नैक्सट है बेटा ए बिंदु पी ते क्यू तो बराबर दूरी ते आ मीनस ए पी कि बराबर होगा ए क्यू दे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ए पी कड्डांगे x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर इज इक्वल टू -10 -2 का स्केयर x2 माइनस x1 का स्केयर, ए क्यू डिस्टेंस कटते हैं प्लस y -4 मीनस प्लस 4 का स्केयर। ठीक है जी, इनू सॉल्व करके बेटा बन जाएगा 145 स्केयर रूट इज इक्वल टू y का स्केयर प्लस 8y प्लस 160। हुण दोनों पासे बेटा ये स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करके तो कोल कितना आ जाऊगा 145 इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 160। ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, अपनी इक्वेशन आ गई वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बना लो बेटा, y की वैल्यूज थोड़े को आ जाएगियाँ -3 ते -5, इट्स ऑप्शन बी। नैक्सट बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये फार्मूला बन जाएगा अपने को साइन दी 4 मीनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा का स्केयर प्लस 1 बाहर है बेटा अपने को कॉसिकेंट स्केयर थीटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर मीनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, प्लस 1 बाहर बेटा उगते ही कॉसिकेंट स्केयर थीटा लिख लो, यदि वैल्यू 1 पुट हो जाएगी तो अपने को कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन स्केयर 1 इंटू साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, प्लस 1 बाहर बेटा देखिए कॉसिकेंट स्केयर थीटा, देखो अपने को बन गया सी ना ये साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिकेंट स्केयर थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा बेटा साइन स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 2 साइन स्केयर थीटा। इनू सॉल्व कर लो बेटा 1 बाय साइन स्केयर थीटा, ये कैंसल आउट हो गया तो आंसर कितना जो अपने को 2, ऑप्शन बी। ठीक है जी, नैक्सट देखो बेटा टैन की वैल्यू गिवन आ, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना बेटा टैन का फार्मूला p/b, ये 3 आ गया 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके बेटा 5 आ जाऊगा। तो बेटा साइन ए की वैल्यू कितनी सी आ जाऊगा अपने को 3/5, कॉस ए की वैल्यू 4/5, इनू सॉल्व करो कितना आ जाऊगा 12/25, इट्स ऑप्शन सी। नैक्सट देखो बेटा ये COD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बेटा इस सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल आ। ठीक है,
तो बेटे दे इन्ना दोनों कोणा जोड़ के बराबर होंदा 180 मीनस DOC की वैल्यू आ जाऊगी 180 माइनस 125 किन्नी आ जाऊगा अपने को 55 इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट देखो बेटा ये आपां ने RQS मीनस इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ। ये 30 है बेटा ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स ने ये एंगल बराबर होणगे आपां एक्स मान लांगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। इतों x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा 75 आ जाएगी ठीक है जी। मीनस ये दोनों 75 हो गए, यही एंगल बेटा तो ये एंगल सेम होणगे लाइन सैगमेंट वाले एंगल ने, तो एंगल S भी कितना आ जाऊगा 75 ठीक है जी। उस तो बाद देखो बेटा ये Z बनती आ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल भी की होणगे इक्वल, इट मीनस एंगल R भी किहदे बराबर आ गया 75 के ठीक है। आ भी 75 आ भी बेटा 75 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आह एंगल फाइंड आउट कर लो ठीक है। RQS 180 माइनस 75 प्लस 75 इनू सॉल्व करके कितना आ जाऊगा 30 इट्स आंसर सी। अगे देखो बेटा ए पेयर ऑफ टेंजेंट इज ड्रान टू ए सर्कल इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज 60 दैन द एंगल बिटवीन द रेडी ड्रान फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट विल बी। देखो बेटा जिवें टेंजेंट्स ने यह एंगल तुहानूं 60 दिता होया ठीक है, अपने आह रेडियस ने आह एंगल फाइंड आउट करना है दिस 190 दिस 190 तो चारे कोना जोड़ कितना होंदा बेटा जी 360 विचों बेटा इन्हूं माइनस कर देंगे 90 प्लस 60 ठीक है जी। तो इन्हूं सॉल्व करके कितना आ जाऊगा 120 इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट है बेटा अपने को देखो रेडियस अपन गिवन आ 36 सेंटीमीटर, अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल गिवन है बेटा 54 पाई। की फार्मूला होंदा एरिया ऑफ सैक्टर का पाई आर स्केयर थीटा बटा 360 इज इक्वल टू 54 पाई ठीक है जी। पाई ना पाई कैंसल आउट हो गया, ये वैल्यूज पुट कर लो बेटा तो तुहाडे कोल थीटा की वैल्यू आ जाऊगी ये विचों 540 डिवाइडेड बाय 36। मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की ये बेटा। उस तो बाद अपन की कढ़ना है लेंथ ऑफ आर्क, एल का फार्मूला की होंदा बेटा पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 ठीक है। इस तुसीं थीटा की वैल्यू पुट कर लियो, आर की वैल्यू पुट कर लेनी है तो थोड़ा एल का आंसर आ जाएगा 3 पाई इट्स ऑप्शन सी। नैक्सट है बेटा अपने को इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस एंड रेडियस आर जॉइंट टुगैदर अलॉन्ग देयर बेसिस। देखो दो हेमिस्फीयर ने आपस में जोड़ते दैन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड मीनस की बन गया एक स्फीयर इट्स आंसर ए। नैक्सट ए सॉलिड बॉल इज डायरेक्टली फिटर इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए। देखो बेटा कोई क्यूब आ उहदे अंदर एक बॉल फिट की गई है ठीक है। दी साइड कितनी अपने को ए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल आपां ने फाइंड आउट करना है तो बेटा डायमीटर भी कितना आ जाऊगा ए, रेडियस कितना आ जाऊगा ए बाय 2, वॉल्यूम का फार्मूला की होंदा 4/3 पाई आर क्यू। ये आर की वैल्यू पुट कर दे बेटा तो आंसर कितना आ जाऊगा 1/6 पाई ए दा क्यू ऑप्शन सैकेंड। नैक्सट बेटा द टेबल बिलो शोज द डेली इनकम ऑफ 425 हाउस होल्ड इन ए लोकैलिटी मीन फाइंड आउट करना। तो फार्मूला होंदा बेटा मीन का समीशन FI XI अपॉन N ठीक है। पहला बेटा दी XI फाइंड आउट कर लेनी है तुसी ने ठीक है। XI कितनी आ जाएगी दी 125 175 225 275 325 फिर बेटा इन्होंने मल्टीप्लाई कर देना जे 125 इंटू 4 ठीक है। तो वो थोड़ी की निकल जूगी FI XI यदि 175 इंटू 5 प्लस 225 इंटू 12 प्लस 275 इंटू 2 प्लस 325 इंटू 2 जेड़ा आंसर आ गया बेटा डिवाइड कर देना 25 से ठीक है। थोड़ा आंसर आ जाएगा फिर बेटा 211 इट्स ऑप्शन बी। नैक्सट है बेटा ए एक काम 8 दिन पूरा करता बी 10 दिन पूरा करता दोनों मिलके कदों पूरा करनगे तो वर्क हमेशा बेटा आप ऑपोजिट करते हैं
ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा 1/8 प्लस 1/10। जो सॉल्व करोगे एलसीएम लेके कितना आ जाऊगा 18/80 9/40। ठीक है, मीन्स बेटा टाइम कितना बन जाओ, डेज कितने बन जाएंगे 40/9। इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट है बेटा ये आप दसना सीगा ये जी रैक्टेंगल आ सारी ये रिप्रजेंट कर रही है मैन नू। ठीक है जी, जी ट्रैंगल आ वो रिप्रजेंट कर रही है एजुकेटेड परसन नू। जिहड़ा सर्कल आ वो रिप्रजेंट कर रहा है अर्बन नू बेटा जी। तो जिहड़ा स्क्वेयर आ दिस वन ये रिप्रजेंट कर रहा है गवर्नमेंट इंपलाइज नू। ठीक है जी, आपां ने दसना इहदे विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट द एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड भी होण ते मैन भी होण। एजुकेटेड ट्रैंगल होगी तो रैक्टेंगल की होगी मैन। एजुकेटेड मैन किहड़े हो गए बेटा जिस दोनों होण मीनस 11। ठीक है जी, इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट सीगा बेटा अपने कोल देयर आर 15 मैंबरस इन ए ग्रुप हुज एवरेज एज किन्नी 25। देखो बेटा पहले आप सम फाइंड आउट करते हैं। एवरेज का फार्मूला की होंगे अपने कोल समीशन एक्स अपॉन एन। मीन हैगा 25, सम आप फाइंड आउट करांगे एन किन्ने अपने कोल 15। इनू क्रॉस आउट कर दो तो बेटा समीशन एक्स की वैल्यू किन्नी आ जाओ अपने कोल, जिन्हों क्रॉस आउट करोगे 375। ठीक है जी, उस वक्त 1 मैंबर लैफ्ट द ग्रुप एवरेज इंक्रीजड बाय 1 ईयर। जो एक बंदा लैफ्ट कर दिंदा ग्रुप नूं तो एवरेज आ 1 साल वध जाती है। एज ऑफ द मैंबर हू हैज़ लैफ्ट उसकी एज अपने फाइंड आउट करनी है। हुण देखो बेटा एवरेज वध गई 26 हो गई, सम आप समीशन एक्स मान लाँगे, मैंबरस एक घट गए मीनस 14। तो समीशन एक्स बेटा नूं क्रॉस आउट करके मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 364। तो 375 दे विचों 364 तुसीं माइनस कर दो तो कितना आंसर आ गया अपने कोल 11। ठीक है जी, नैक्सट सीगा अपने कोल इस सीरीज़ दे विच बेटा नैक्सट टर्म किहड़ी आ, इहदा आंसर आऊगा 131। नैक्सट सी बेटा अपने कोल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ टोटल डिस्टेंस एक्स मान लवांगे। ठीक है, ਜਿਹੜਾ एक परसन आ मान लो टोटल डिस्टेंस किन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटा जी एक्स। ਜਿਹੜੀ हाफ डिस्टेंस आ मीनस x/2 डिस्टेंस ਉਹਨੂੰ कवर ਕਰਨ ਲਈ किन्नी स्पीड आ 40 किलोमीटर पर हॉर। ਜਿਹੜਾ बेटा ਇਹਦਾ हाफ आ मीनस 1/2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो x/4 ਉਹਨੂੰ कवर करोगे किन्नी स्पीड लगती बेटा ਉਹਦੀ स्पीड हैगी अपने को 20 किलोमीटर पर हॉर। जी बाकी रह गई किन्नी रह गई x/2 ਦੇ ਵਿੱਚ x/4 ਤੁਸੀਂ x/2 ਤੇ x/4 ਨੂੰ जोड़ के x ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो तो बाकी किन्नी रह गई बेटा x/4। ਉਹਨੂੰ कवर करने ਲਈ किन्नी रह गया अपने को स्पीड किन्नी है 10 किलोमीटर पर हॉर। एवरेज स्पीड अपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अपने को फार्मूला होंगे बेटा तो पहले टोटल टाइम फाइंड करो। टाइम का फार्मूला कि होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा टोटल टाइम कितना आऊगा, फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है अपने को x/2, स्पीड कितने बेटा अपने को 40। सिमिलरली x/4 इंटू 20 प्लस x/4 इंटू 10। इन्हें बेटा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आ जाऊगा अपने को 4x/80। ये बन गया टोटल टाइम मीनस x/20। ठीक है जी, तो अपन की करनी सी एवरेज स्पीड, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस x, टाइम कितना जी x/20। ये कैंसल आउट हो गया तो अपने कितनी आ गई स्पीड बेटा एवरेज 20। इट्स ऑप्शन सैकेंड। नैक्सट बेटा देखो अपन देखना आ विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। देखो 3 ਦੇ ਨਾਲ 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। ठीक है, 4 फेस कवर हो गए मीनस 3 के ऑपोजिट की होगा बेटा जी 4, 4 के ऑपोजिट की होगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट सी बेटा अपने को उम्र गिवन है बेटा अवतार दी, ठीक है, गौरव दी ते हरिंदर दी। ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ अवतार एंड गौरव किन्नी अपने को 70। जब यदि एक्स मान ली तो यदि किन्नी बन जाए बेटा 70 माइनस एक्स। ठीक है जी, उस तो बाद अपन गिवन आ अवतार इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन हरिंदर। अवतार हरिंदर तो 4 साल वड्डा आ मीनस हरिंदर तो की होगा 4 साल छोटा।
x-4 आ गई। रेशो ऑफ एज गौरव एंड हरिंदर, गौरव तो हरिंदर की बेटा एज की रेशो गिवन आ, मीन 70 - x डिवाइडेड बाय x-4, रेशो कितनी अपने को 5/6। इन्हू क्रॉस आउट करके बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाऊ अपने को 40। अपने कढ़नी की है वट वाज द एज ऑफ अवतार 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहला कितनी उम्र सी, तो बेटा 5 साल घटा देंगे आप, कितना जो अपने को 35। इट्स ऑप्शन सी। ठीक है जी। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना।